Okay, so let's start the class without any further delay. So we have seen this numerical in the previous class, this one. Okay, so this was the digital input given there. So digital input corresponding decimal number was 50. So we know that k into digital number input in decimal equals to the output. Output was 1 volt. Okay, the output was 1 volt. 1 equals to k into 50. So this gives us k equals to 20. So once we know the k, we can calculate for any input. Now it asked us to calculate for the 8 bit, but for the maximum value. So for the 8 bit maximum value can be all ones. Okay, so for 8 bit maximum value can be when all are 1. So this gives us 255. So V out maximum possible is k into 255, which is 5.10. So this is the maximum possible value that the that we can get from the base. Okay, so let's move ahead. I hope this is clear to everyone. No problem to anyone. Okay, so this next thing is analog output. What is analog output? The output of a DAC is technically not an analog quantity because it can take on specific values like the 16 possible levels for V out. Okay, so ये बात सही है. So when we are talking about DAC means which takes input as digital and gives output as analog. Okay, so this is input side digital and the output side is analog. Okay, so what we expect that it would give us an analog output, but it is technically not perfectly analog because the output values depends on the number of bits we are using at the input side. Okay, so if we are using 4 bit at the input side, so you can see that by 4 bit by 4 bit how many levels you can different level you can identify. It is 2 to the power 4. Okay, so total 16 distinct levels would be there. Okay, so means there will be 16 distinct analog levels. Okay, so that signal is not perfectly analog. Sorry, so that signal is not perfectly analog. So it is giving us indeed an analog signal, not giving a digital word like 40100 we are using for 4 bits. So for this it may give some value. Okay, so for each digital word we are having a corresponding label. Okay, so that label is analog. Okay, that label is not digital, but it depends on the digital word. Okay, so if we use 5 bits, so there will be total how many labels? To the power 5, that gives us the 32 distinct labels. Okay, so you can see that if we use 6 bits, so what we will get is 2 power 6, which gives us the 64. So we will get the 64 distinct labels. Okay, so definitely it is not giving us a an analog signal, but it is giving a steps of an analog signal. Okay, so thus in that sense it is actually digital. Okay, signal is digital but not represented in the bits. Okay, so there are some steps level. Okay, so this is normally we call it as a discrete. However, the number of different possible output levels can be increased. Okay, so I told you that we can increase the number of output levels. Like if we are using 4 bits, we will get only 16 different levels. If we are using 5 bits, we will get the 32 different levels. If we are using 6 bit, we will get the 64 different levels.
Okay, so this we can do by increasing the number of bits. Okay, so just for example, I'm saying this. If we want to represent, we are supposed to represent an analog signal in the range of 0 to 5 volt. Okay, so we know that the analog signal would always be between 0 to 5 volt. Oh, okay, so suppose for this, if we use 4 bit digital input is there. So this 5 volt will be represented by how many levels? 2 to the power 4, that is the 32 levels. So in this case, this 5 volt will be represented by, sorry, not 32, 16 levels. Okay. Now suppose if we want to represent these same analog voltages between by using the 5 bits, so what we will get? The 32 levels. So now you can see that the voltage is same 0 to 5, but now it is represented by more number of levels. Okay, so we will get more number of levels. So between one level to second level, the step size will be smaller. Okay, so if we increase this 6, so we will get the 64 levels. We will get more number of levels between same voltage. Okay, so if we increase the number of bits, we get more number of labels, so it improves the better distribution or the uh, higher resolution. Okay, so however the number of digital possible output levels can be increased and the difference between successive values can be decreased. ये आपको पता चल गया कि difference between the successive values can be decreased. अगर हम वही 5 वोल्ट को 16 से रिप्रेजेंट करेंगे 0 से 5 वोल्ट को, जो स्टेप्स आएंगे वो स्टेप्स थोड़े बड़े बड़े होंगे. 16 से अगर हम करें तो ये स्टेप्स ऐसे आएंगे, इनके बीच का गैप जो है वो ज्यादा होगा. अगर हम इसकी को 32 से रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, इनके स्टेप्स क्या होंगे, अब उतने में ही आपको तो देखिए नंबर ऑफ स्टेप साइज क्या हो गया, क्योंकि आपको उतने में ये कितने यहाँ 16 लेवल कर रहे थे तो यहाँ पर 32 लेवल करना है. ठीक है, तो नंबर देखिए स्टेप साइज क्या हो गया, छोटा हो गया. अगर हम यही 64 कर दें तो स्टेप साइज क्या होगा, और भी छोटा हो जाएगा. एक यहाँ पर हो गया. अब देखिए स्टेप साइज और भी छोटा हो गया. ओके, तो स्टेप साइज और छोटा होता चला जाएगा. तो हम नंबर ऑफ लेवल इंक्रीज करेंगे तो हो सकता है कि ये 1 वोल्ट हो यहाँ से यहाँ तक का. ठीक है, 1 वोल्ट तो नहीं होगा, कुछ कम होगा. लेट्स से इट इज पॉइंट कुछ हमने 0.5 ले लेते हैं. 0.5 भी एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा जाएगा. फिर ये क्या होगा, ये 0.25 हो जाएगा स्टेप साइज. ठीक है, और यहाँ पर और भी छोटा होकर के उसका भी हाफ हो जाएगा 0.125. तो स्टेप साइज देखिए आप बराबर रिड्यूस होता चला जाएगा. ओके, so this can be done here. So this is possible when we use large number of bits. Okay, I hope this is clear to all of you. Okay, so step size बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं. ज्यादा नंबर ऑफ लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे, स्टेप साइज रिड्यूस हो जाएगा, तो हमें ज्यादा नंबर ऑफ वोल्टेज लेवल्स एट द आउटपुट साइड हमें मिल जाएंगे. This will allow us to produce an output that is more and more like an analog quantity. Okay, so step size कम करने से या फिर नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाने से क्या होगा, हमें मोर एंड मोर आउटपुट लेवल मिलेंगे. So that will make us the things looking like more and more analog. That varies continuously over their range of values. ठीक है, so I hope this point is clear how the number of bits are affecting the
output signals. Okay, the same voltage level can be represented by different output levels. Okay, so same example for that is we are using here. See, we know that in a digital world, all the bits are not having the same weight. So if the digital word is DCBA, so A is the LSB. So LSB means least significant bit, so its weight will be less. And this B is called the MSB. So this is like having the highest weight. Okay, means weight. I think you understand weight. Weight means it affects the signal more. Okay. So this one example is shown here. Okay, so if we keep each bit one, we can see what is the effect on the output. Let's keep this A equals to 1. Okay, so this is LSB and let's corresponding output is 1 volt. Okay, and you okay. So for example, you take K is equal to 1. Okay, previous example अगर हम K equals to 1 ले लें तो हमें क्या मिलेगा? If we take K equals to 1, the out equals to digital word into K. K is 1, digital word will be 0001, which is 1. So we will get B out equals to 1. In the second case, B is 1, others are 0. We are checking the weights of individual bits. So obviously this is 0010. This is a 2 in decimal. So this will be K into 2. So this will give us 2 out. Okay. And now the bits, what is the weight of C? So C is 1, others are 0. So we'll get 4. So D is 1, others are 0. We'll get the 8. So you can see that A is least weighted and the D is highly weighted. Okay. I hope this is clear to all of you. Okay. So same thing is written here. Let's read and let me read it for you. A, which is the LSB, has a weight of 1 volt. B has a weight of 2, C has a weight of 4, and D has a weight of 8. Okay. The weights are successive doubled for each bit. Okay. You know that in the digital world, the bits are having the double weights. Like here, so weight of B is always double the weight of A. Weight of C is double the weight of B. Weight of D is double the weight of D. C. Okay. तो अगर A के वेट में 2 से मल्टीप्लाई करें B मिलेगा, B में 2 से मल्टीप्लाई करें C मिलेगा, C में 2 से मल्टीप्लाई करें हमें D मिलेगा. Thus we consider V out to be the weighted sum of the digital inputs. ठीक है, ये हमने ये बात पहले भी हो चुकी है. हमने जो लिखा था इससे पहले V out equals to K times digital input. Okay, digital input का decimal equivalent. Okay, so this is what this tells us. So this tells us that D आउटपुट जो होगा वो क्या होगा? डी का वेटेड सम होगा. ठीक है, अगर हम के की वैल्यू जो भी सिलेक्ट करना चाहे हम सिलेक्ट कर सकते हैं. उस हिसाब से स्केलिंग हो जाएगी. ये तो के सिर्फ बस एक स्केलिंग फैक्टर है. ठीक है, this we can okay. For instance, to find out for the digital input this, we can add the weights of C, D, B and A and we can get the answer. Okay. जब अगर हमें सब इंडिविजुअल वेट्स पता है, ठीक है, तो हम इस सबके वेट को इंडिविजुअली ऐड कर देंगे. 4 का वेट, ए का वेट कितना है, सी का वेट, बी का वेट, 1 का वेट एंड द टोटल आंसर वी कैन कैलकुलेट लाइक दैट. If anyone having any doubt can ask. Okay, so let's move ahead quickly. So this is one more problem here. Quickly let's see it. A 5-bit digital to analog converter produces this. Okay, for digital input this. Okay, so you can see that. Okay, find the value of B output this. Okay,
तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, हाँ के भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या देगा, फॉर डिजिटल इनपुट ऑफ दिस। ओके, तो डिजिटल इनपुट कितना है इसका, 001। इट मींस क्या है, लास्ट बिट इज 1, तो ये लास्ट बिट का वेट कितना है, 0.2। लास्ट बिट का वेट कितना है, 0.2। ओके, तो उसके बाद वाली बिट अगर 1 हो जाएगी तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 0.4। और उसके बाद वाली बिट अगर 1 हो जाए तो इसका वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा 0.8। और अगर सबसे लास्ट वाली बिट 1 हो जाए तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 1.6। ओके, ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये कैलकुलेशन क्लियर है, सबका वेट हमने कैसे डिसाइड कर लिया, हमें पता चला कि एलएसबी का वेट कितना है, 0.2, क्योंकि एलएसबी जब 1 है तो आउटपुट कितना आ रहा है, 0.2। ठीक है, देखिए इसका दूसरा मेथड वही है जो आपने हमने से पहले किया, आप इसके लिए के निकाल लीजिए। ठीक है, हमने इसके लिए आप के निकाल लीजिए, के बाद आप किसी भी सिग्नल के लिए आउटपुट निकाल सकते हैं, विदाउट एनी फेल यू कैन डू दैट इन दैट वे। ओके, दैट इज करेक्ट, नॉट ओके, you can do by that way also, but we are understanding how this is working. So for this this exercise is there. Okay, so if LSB is 1, the output is 0.2. It means that weight of the LSB is 0.2, and you know that weight of the bit next to LSB. Okay, if this bit becomes 1, so this weight will be how much, 0.4. Okay. Similarly, after this, if this becomes 1, so the weight will be, if this is becomes 1, the weight will be 0.8. And if the last bit becomes 1, okay, I'm writing 1, then the weight will become 1.6. You can see that all the weights are double of the previous bit. Okay, so now we know the weights of all the bits individually. Now we want to calculate for this signal. Okay, तो इन्होंने यहाँ पर एक गलती मुझे लग रही है, तो पहले भी 4 बिट होंगे, यहाँ 4 बिट का है, यहाँ पर 5 बिट का लिख रखा है, सो दिस इज एन एरर, सो वी कैन, तो इसमें यहाँ पर 5 बिट है, यहाँ पर 0 और भी है। ओके, सो दिस क्वेश्चन के आंसर से पता चल रहा है कि यहाँ पर 0 और भी है, दिस इज अ 5 बिट सिग्नल, क्योंकि यहाँ पर 5 बिट लिखा भी है, तो यहाँ पर एक बिट लिखना भूल गई, 0 बिट एरर, टाइपिंग एरर है यहाँ पर। ओके, so this is 40 and then 1. ओके, तो अब हमें इसके लिए आंसर निकालना है, आई होप कि आप इसके लिए आंसर निकाल सकते हैं। लास्ट वाली बिट 1 है तो कितना ऐड होगा, 0.2, इसका वेट होगा 0.2। इसके बाद वाली बिट 1 है तो ये कितना देगा, 0.4। ये बार वाली बिट 1 है तो ये कितना देगा, 0.8। इसके बाद वाली बिट 1 है तो ये कितना देगा, 1.6। इसके बाद वाली बिट 1 है तो ये कितना देगा, 3.2। now add all these, what we will get, that is the answer. Okay, 4 to 6, 6 8 14, 14 1.6 is 3, and 3 and 3.2 is 6.2, so the answer is 6. Okay, I hope you understood the answer. Okay, in the same case, if the input is this, can anyone tell me answer? If we are asked to calculate the weight for this, can anyone tell me answer? This is the for this signal we want to calculate the output. Give me the answer quickly, I am waiting for you. Okay, I hope you understand this part that I have solved here, and it is already solved in the notes. So can you tell me the answer for this quickly? I am waiting for you. Quickly, we don't have much time, quickly solve the answer and give it to me. I am waiting.
So one of the answer is 2.8. और कोई आंसर है? Any other answer? One of the answer is 2.8. और कोई आंसर है इसमें किसी के पास, या किसी और का आ गया हो? 2.8 ही आया हो, अभी तो बस एक ही आंसर हमें मिला है. Quickly make it faster. जल्दी करें. It's 2.8. कोई और आंसर नहीं? किसी की नहीं समझ में आया कैसे आंसर आएगा इसका? दूसरा आंसर आया. चलिए, बहुत बढ़िया. दूसरा आंसर जल्दी और जल्दी कीजिए. तीन आंसर आ गए. जल्दी और कीजिए. आई एम गिविंग यू टाइम, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो जल्दी कीजिए. अब तक सबके आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए. हाँ, ठीक है. गुड गुड. और हो गए. दो दो तीन आंसर और आ गए. जल्दी कीजिए, बहुत सारे लोग हैं क्लास में. 34 लोग हैं. अभी 4-5 लोगों के आंसर आए हैं. ओके, लोगों के आंसर आ गए. ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड. इसका वेट है कितना? 0.4 प्लस इसके बाद वाली बिट का वेट है कितना? 0.8. ये हो जाएगा 0.8. और इसकी लास्ट बिट का वेट है कितना? 1.6. so it gives us totally 2.8. Okay, so 2.8 is the correct answer. Okay, so let's move the next thing. Okay, I will ask you everyone, when I give you question, be quick and try to solve it. Okay, so this will be a parallel practice how much you have learned. Okay, so next thing is resolution is very important in case of the digital and analog converters. Okay, so resolution of a DA, okay, digital to analog converter, is defined as the smallest change that can occur in in the analog output as a result of a change in the digital input. बात समझ में आई? Okay, फिर से पढ़ लीजिए इसे. Resolution of a D to A converter is defined as the smallest change. Okay, smallest change है ये resolution जो भी है. smallest change किस चीज में? That can occur in analog output. Analog output में smallest change जो आ सकता है as a result of change in the digital input. ठीक है, तो आपने देखा कि हमारा डिजिटल इनपुट अगर 4 बिट का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, 4 बिट का अगर है हमारा, ये 4 बिट का सिग्नल है, ठीक है, तो या 4 बिट की हम DCBA ही लिख देते हैं, इससे क्या अभी हम बात कर रहे हैं DCBA के टर्म्स में. तो आपने देखा कि अगर B की बिट चेंज होगी तो कितने का इफेक्ट पड़ेगा? अगर देखिए, अगर जो भी है सबसे स्मॉलर इफेक्ट कब पड़ेगा? जब A चेंज होगा. ठीक है, B चेंज होगा तो A का डबल इफेक्ट पड़ेगा, C चेंज होगा तो B का डबल इफेक्ट पड़ेगा, और D चेंज होगा तो C का डबल इफेक्ट पड़ेगा. तो D की वजह से तो स्मॉलेस्ट चेंज नहीं हो सकता, C की वजह से भी नहीं हो सकता क्यों? C B से डबल है. B की वजह से भी नहीं हो सकता क्यों? B A से डबल है. तो स्मॉलेस्ट चेंज किसकी वजह से होगा? जो LSB की. ठीक है, तो LSB की चेंज होने से जो स्मॉलेस्ट चेंज आएगा, दैट उसी की LSB की वजह से ही स्मॉलेस्ट चेंज आ सकता है. अब देखिए कि LSB अगर इन स्टार्टिंग में 0 0 है, सॉरी बिट 0 0 है. प्रीवियस एग्जांपल ही ले लेते हैं, और प्रीवियस एग्जांपल हम 5 बिट का था, और उसमें A के करस्पॉन्डिंग कितना था? 0.2. तो अब देखिए, अगर हम इसका नेक्स्ट
अल्हम्दुलिल्लाह, excuse me. So, अगर हमारा सिर्फ ए चेंज होता है तो हमारा नेक्स्ट सिग्नल कितना है 0000001. So it means that now the digital output will be how much? Analog output will be 0.2 volt. Okay. इस केस में एनालॉग आउटपुट कितना होगा? 0. ओके. अब देखिए कि इसमें सिर्फ हमने एक चेंज किया तो स्मॉलेस्ट चेंज हमने इनपुट में चेंज किया, आउटपुट में कितना स्मॉलेस्ट चेंज है 0. अगर हम इसकी जगह कोई भी चेंज करेंगे, सपोज ये अगर हम ये करते हैं, ठीक है, अब कितना आउटपुट आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा हमारा कितना 0.8. ओके. तो हमारा आउटपुट कितना आएगा 0.8. ओके. तो हमारा स्मॉलेस्ट चेंज किसकी वजह से होगा? जो एलएसबी है. तो एलएसबी की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो हमारा रेजोल्यूशन बताएगा. ठीक है, ये बात याद रखिए. सो स्मॉलेस्ट चेंज इन आउटपुट की बात करना है हमें. ठीक है, और वो किसकी वजह से? डिजिटल इनपुट में. तो डिजिटल इनपुट में तो बहुत सारे चेंजेस पॉसिबल हैं. ठीक है, कि हम सारी बिट, एक बिट बंद करें, दो बिट बंद करें, या बी को अकेले बंद करें, सी को अकेले बंद करें, डी को अकेले बंद करें, या ए को अकेले बंद करें. तो आप देखेंगे कि स्मॉलेस्ट चेंज किसकी वजह से आएगा? ए की वजह से, बिकॉज ए इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. its significance in the number is least. We can see that resolution is 1 volt since Vout can change by no less than 1 volt when the ये प्रीवियस एग्जांपल की बात कर रहे हैं, अपने उससे प्रीवियस वाले एग्जांपल. तो हम मैंने शायद आपको क्लियर कर दी है बात. ठीक है. सो यहाँ पर एक एग्जांपल बना रखा है. यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट का एग्जांपल और दिया है कि जो ए के करस्पॉन्डिंग, जो सबसे पहले ऊपर टेबल बना करके देखा था कि डी के करस्पॉन्ड ए के करस्पॉन्डिंग कितना था. हमने टेबल बनाकर देखा था, ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमने आउटपुट लिख रखा था. कितना आउटपुट था? 1. ठीक है, बी को 1 किया था तो बी के करस्पॉन्डिंग कितना था? वहां पर 2 था. जब सी किया था वहां पर 4 था, और डी किया था वहां पर कितना था? 8 था. ये हमने ऊपर से पहले टेबल देखी. तो ये उसी के करस्पॉन्डिंग 4 बिट बनाया है यहाँ पर. ठीक है, तो मैं 4 बिट हमें यहाँ पर मिल रही है. अब हम इसको एनालॉग कन्वर्जन करना चाह रहे हैं तो क्या होगा? 4 बिट्स हम 16 लेवल्स हमें मिलेंगे. तो हमने 0 से लेकर के कितने 16 लेवल्स बना दिए. ठीक है, 4 बिट काउंटर हो गया हमारा. ठीक है, और ए का इफेक्ट कितना है? ए के चेंज होने से कितना चेंज होता है? 1 वोल्ट. ओके, सो लीस्ट चेंज किसकी वजह से? 1 वोल्ट. तो अगर हम देखिए 16 लेवल्स बनाना है और स्मॉलेस्ट चेंज कितना है? 1 का. तो 0 से पहले स्टेज चेंज होगा 1. ठीक है, देखिए 0 से स्टेप चेंज हमारा कितना हो गया? 1. तो स्टेप साइज कितना हुआ? 1. फिर 1 से चेंज होगा 2 पर जाएगा. 1 मींस जैसे कि अगर हम क्विकली मैं थोड़ा यहाँ पर टेबल बना दूंगा. तो ऐसे ही हम सारे लेवल्स आते चले जाएंगे. ठीक है, तो अब देखिए कि अब 0 0 था तो 0 0 किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? ये 1 वोल्ट से रिप्रेजेंट हो रहा है. ये 0 लेवल से रिप्रेजेंट हो रहा है. ये जब ये 1 हो गया हमारा तो ये हमारा किससे रिप्रेजेंट होगा? ये 1 वोल्ट से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि हमारा स्टेप साइज कितना है? 1. फिर ये किससे होगा? नेक्स्ट दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 2. ये रिप्रेजेंट होगा हमारा किससे? 3 से. तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर स्टेप साइज सारे बना रखे हैं 1 2 3 4. ठीक है, स्टेप साइज हमेशा 1 है. ये लेवल्स वेल्स क्या होते हैं? चेंज होते चले जाएंगे. 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो कितने टोटल से कितने 16 लेवल्स हो जाएंगे टोटल. तो 0 से 15 तक टोटल 16 डिफरेंट लेवल्स हो जाएंगे. सो रेजोल्यूशन आपको पता चल गया होगा रेजोल्यूशन कितना है. रेजोल्यूशन स्टेप साइज के बराबर. और रेजोल्यूशन और स्टेप साइज कितना है यहाँ पर? 1 वोल्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके, तो यहाँ पर नोट दैट staircase has 16 levels corresponding to the 16 input states.
but there are only 15 state steps or jumps between जीरो लेवल एंड द स्केल लेवल। ओके, सो द टॉप जो हमारा सबसे ऊपर आता है उसको हम फुल स्केल भी बोलते हैं। ये हमेशा याद रखिए, सबसे ऊपर वाला जो लेवल होगा उसे क्या बोलेंगे, फुल स्केल। क्योंकि आप पहले एक एग्जांपल कर चुके हैं कि जब मैक्सिमम डिजिटल वर्ड की वैल्यू जब मैक्सिमम होती है तो हमारा क्या होता है, तो हमारा आउटपुट मैक्सिमम आता है, जब उसको हम क्या बोलते हैं, फुल स्केल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम वर्ड होगा, ये क्या कहलाएगा, फुल स्केल कहलाता है, मैक्सिमम की करस्पॉन्डिंग हुआ, इज कॉल्ड द फुल स्केल आउटपुट। तो हमारे पास कितने टोटल 15 स्टेप्स हैं, ठीक है, जीरो से फुल स्केल तक के बीच में। ओके, 15 स्टेप्स और 16 लेवल्स, 16 लेवल्स। In general, for an n bit DAC, the number of different levels will be 2 power n। ये तो बात पहले भी हो चुकी है, 4 बिट है तो 2 टू पावर 4 डिफरेंट लेवल्स होंगे। ठीक है, स्टेप्स कितने होंगे, स्टेप्स हमेशा एक कम होगा, क्योंकि एक जीरो लेवल होता है, एक टॉप वाला होता है। ठीक है, तो 2 to the power 4 minus 1, that will give us the 15। okay? So इस केस में 15 स्टेप्स होंगे। ओके, तो अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि जो रेजोल्यूशन इनफैक्ट वो k की बराबर है। ठीक है, रेजोल्यूशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या है, k के बराबर है। ठीक है, तो अब हम देखिए कि रेजोल्यूशन का वेट कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है हमारा LSB से। ओके, अब ये LSB 1 है, अब ये LSB जिससे भी मल्टीप्लाई होगी उतना आंसर में मिल जाएगा। लाइक k की वैल्यू अगर 0.2 हो जाए तो k इंटू ये LSB 1 है, तो ये वहां पर डिजिटल वर्ड कितना आएगा, ये डिजिटल वर्ड कितना आएगा, 1। तो 1 into 0.2, so you can see that the smallest step size is 0.2। okay, so this will be the resolution। okay, so this k decides the resolution। okay, so minimum change can be given in the digital word by the LSB। okay, तो मिनिमम चेंज कौन दे सकता है डिजिटल वर्ड में, वो है LSB। LSB कौन, ये हमारी, ये LSB हमारी। ठीक है, तो दिस कैन गिव द मिनिमम चेंज। अच्छा, अब इस मिनिमम चेंज की वजह से आउटपुट में मिनिमम चेंज कितना आएगा वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो आउटपुट में तो हम ये डायरेक्टली हमारा ये आंसर तो होता नहीं है, हमारा क्या होता है, डिजिटल वर्ड जो भी है, डिजिटल वर्ड इज मल्टीप्लाइड विद द 0.2। तो हम देख रहे हैं कि हम जब मिनिमम चेंज की वैल्यू रख रहे हैं, तो मिनिमम चेंज कितना स्टेप, ये LSB होगी, इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू 1 जब हम रखेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 0.2। तो इनफैक्ट द k इज द रेजोल्यूशन। okay, so this k gives us the resolution। so LSB gives the minimum change in the digital word, and after multiplying by k it gives the minimum change in the output signal। मैंने आपको ऊपर बताया था, हम यहाँ पर 1 वोल्ट ले रहे हैं, हमने k को वहां पर 1 कंसीडर किया था। ओके, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं। A new interpretation of this expression would be that digital input is equal to the number of steps। k is the amount of voltage or current per step। okay, and analog output is product of the। तो ये वही बात लिखी जो हमने की है कि एनालॉग आउटपुट क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। k क्या है, एक स्टेप में कितनी वैल्यू चेंज होगी ये डिसाइड करेगा। ठीक है, जो स्टेप का साइज की वैल्यू ये डिसाइड कर रहा है। ठीक है, और डिजिटल वर्ड में LSB जो होगी वो हमारा मिनिमम चेंज इन डिजिटल इनपुट देगी। ओके, सो अब यहाँ पर ऊपर के लिए बात की गई है। अब आप ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। देखिए इसी चीज को, इस क्वेश्चन को बदल दिया जाए। यहाँ पे लिखा होगा फॉर द DAC ऑफ एग्जांपल 3 डिटरमाइन वी आउट फॉर दिस सिग्नल। वी आउट निकालना है हमें इस सिग्नल के लिए। ओके, तो आपको याद होगा के वहां पर 0.2 आया था, सो के वाज 0.2, तो हम निकाल सकते हैं विच इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के हमारा 0.2 आया था वहां प्रीवियस एग्जांपल 3 में। तो द डिजिटल इनपुट इज दिस, तो हमें कितना मिल जाएगा, 0.2 into 17, so this will give us the answer। ठीक है, तो बस के का एक नया नाम आ गया है, के को हम स्टेप साइज बोल रहे हैं और रेजोल्यूशन बोल रहे हैं। ठीक है,
बाकी कोई चेंज नहीं है। ओके, सो ये वी कैन से दैट दिस ऑल वाज अ बैकग्राउंड फॉर द रेजोल्यूशन। परसेंटेज रेजोल्यूशन में कुछ डेफिनेशन और हैं, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। देन वी विल गो टू द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स के जो एक्चुअल सर्किट हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। क्विकली देख लेते हैं क्योंकि फिर टाइम कम है हमारे पास। सो क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन वगैरह मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। ओके, सो हमने रेजोल्यूशन देख लिया। अब परसेंटेज रेजोल्यूशन की बात करें। परसेंटेज रेजोल्यूशन क्या है? ये परसेंटेज रेजोल्यूशन की डेफिनेशन, और ये हमेशा हमेशा सेम रहेगी, आप इसे याद रखिएगा। स्टेप साइज की जो भी वैल्यू है, स्टेप साइज डिवाइडेड बाय फुल स्केल इनटू 100। ओके, सो दिस इज द परसेंटेज रेजोल्यूशन, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, सो हम पहले देख रहे हैं स्टेप साइज 1 है, ठीक है, और फुल स्केल कितना था हमारा? 15 था, ठीक है। इससे पहले वाला एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, किस एग्जांपल की यहाँ पे बात की जा रही है, इसकी बात कर रहे हैं। तो फुल स्केल कितना है? देखिए यहाँ पर फुल स्केल वोल्टेज कितना है? 15 वोल्ट, ठीक है। फुल स्केल वोल्टेज कितना है? 15 वोल्ट। इस रेजोल्यूशन और स्टेप साइज कितना है? 1 वोल्ट। तो हम इसका परसेंटेज रेजोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो इसका परसेंटेज रेजोल्यूशन कितना आएगा? इसका परसेंटेज रेजोल्यूशन कितना होगा? स्टेप साइज कितना था? 1 वोल्ट। फुल स्केल कितना था? 15 वोल्ट। And this is multiplied with 100, so this is the percentage resolution is 6.67%. Okay, so the percentage resolution means this is the आप देखिए परसेंटेज आप निकालना जानते हो, उसका मतलब भी समझते होंगे। ओके, सो हम ये जो भी स्टेप साइज है वो किसके रिस्पेक्ट में है? दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द फुल स्केल। तो हम जो स्टेप साइज का इफेक्ट है वो विद रिस्पेक्ट टू फुल स्केल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन नीचे सॉल्व किया हुआ है। Okay, so yes, you have to answer this question number 5 by yourself. Answer this question number 5 by yourself. I'm letting you know. See the question 5. Okay, so question 5 आपको खुद आंसर करना हो, जल्दी करना। I'm waiting for you. Okay, so कंप्यूटर फॉर अटेंडेंस, आप लोग अब तक ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो रिया, राइजादा, okay, let me, yes, Riya is there. आयरा, रियाज, सानिया समर, सानिया समर, सानिया सिद्दीकी, इंशा फिरोज, सीमा चौधरी, अम्बरीन फातिमा, अमीना सुफियान, सबा खान, जोवा निहाल, आकांक्षा सोलंकी, तनुश्री, तरफ ताहिर, आलिया मोजिज। किसी का आंसर आ गया है, एक आंसर आया है। तरफ ताहिर, आलिया मोजिज,
आयरा अभी तक कहाँ थी यहाँ पर, बट आप ज्वाइन कर रहे हैं। आलिया मोजिज नहीं है। सुबही माहिर, मरियम नदीम, शाइका परवीन, एक्सक्यूज मी सर। गरिमा शर्मा, डिम्पल, हबीबा परवीन is there, Zoya Nisar also, she's also there. Let's talk about phonics. Zainab, Farha, Mavish Noor, Mavish Noor, okay, she's there. Ifra, Irtika, Tisha, Kanza, Ayman, Nazmeen, Laiba Habib, Nadia Tanveer, Abiya Zehra, Ariba Mansoori, Ayushi Varshney, Laiba Khanam, Yukti Rana, Sidra Fatima, Laiba Khanam, Saima Jamal, Mavish Naz, Anu is there, Kumari Lucky is there, Ariba Abid, Asiya Naqvi, Asiya absent, Tanvi is there. Okay, Yukti is also there. Okay, okay. So I hope some of you might have got the answer. Till now, only one person gave me the answer. Okay. So let me show you what is the answer. अगर वो आंसर सही है तो ज़ैनब का देखिए आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, परसेंटेज रेजोल्यूशन पूछा गया था. So percentage resolution is nearly 0.1%. ठीक है. So ये नोट्स आपके पास हैं, आप समझ गए होंगे होपफुली. ठीक है. Okay, you may be having class, so you can start the class. Okay, thank you.